ये पूरा Q&A सेशन का, so we're gonna try कि every month हम ये Q&A सेशन रखें और उसमें पॉडकास्टिंग के रिलेटेड जो भी आपका कुछ भी क्वेश्चन हो आप मुझे पूछ सकते हो। एनीथिंग अराउंड रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, टॉपिक्स, आइडियाज, ये वो रैंडमली अराउंड द पॉडकास्टिंग थिंग, तो आप मुझे पूछिए और मैं उसका आपको जितना हो सके उतना आंसर्स दूंगा। सो साउंड्स गुड। तो आया नहीं 24 4 लाइन्स में एक एक का 6 नंबर्स। और जो लोग या म्यूट ऑल, जिनको भी क्वेश्चंस पूछने हैं दे कैन रेज देयर हैंड्स एंड हमारे जो को होस्ट है निशी और शिवम वो आपको अलाउ करेंगे टू आस्क अ क्वेश्चन। बी रेडी विथ योर क्वेश्चंस अराउंड पॉडकास्टिंग, पॉडकास्टिंग के इंडस्ट्री, ये वो जो भी है। एंड या आई एम हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। साउंड्स गुड। Okay, 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 awesome. So yeah, go ahead, raise your hands and आप अपने सवाल पूछिए। मेरा आंसर दूँ। Go ahead, नीलम। गुड इवनिंग Good आशीष। evening. आपसे ये पूछना चाह रही थी कि कैनवस पे से अपन कैसे सिलेक्ट करते हैं एंड हाउ डू वी पुट आवर इनिशियल एज नीलम हुमियर। वहां पे मैं आके रुकी हुई हूँ बेसिकली। आई एम नॉट फ्रॉम टेक्निकल फील्ड सो लाइक दिस इज द थिंग आई एम फेसिंग राइट नाउ। कैनवा ऐप पे बोल रहे हो आप? जी जी ठीक है, आपको कवर आर्ट बनाना है आपके पॉडकास्ट का। जी जी ठीक है। सो ना आपको नेसेसरीली जरूरत नहीं है कि कैनवा ऐप से ही बनाएं। आपने स्पॉटिफाई फॉर पॉडकास्टर्स डाउनलोड किया है? जी है। ठीक है, आप उसमें जाएंगे ना तो कवर आर्ट का एक ऑप्शन होता है, वहां पे थंबनेल आपको दिखेगा। आप उस पर क्लिक करिए और जी डायरेक्टली वहां पे आपके इनिशियल्स आप टाइप कर सकते हो, आपके पॉडकास्ट का नाम लिख सकते हो, एक बैकग्राउंड डिजाइन भी यूज कर सकते हो और वो इजीली आपका पूरा एक कवर आर्ट बन जाएगा। बिकॉज आप थोड़ा अगर नॉन टेक्निकल हो तो स्पॉटिफाई वो पॉडकास्टर्स से ही डायरेक्टली आप बना सकते हैं। कैनवा ऐप में थोड़ा सा मतलब आपको और ज्यादा ही क्रिएटिव कुछ बनाना है तो वहां से टेम्पलेट यूज करके जो दूसरे लोगों ने बनाया वैसे बना सकते हो। बट आपके लिए नीलम जी सिंपल है, आप स्पॉटिफाई पॉडकास्टर्स में जाइए, वहां पे थंबनेल का ऑप्शन है, वहां पे क्लिक करिए, कवर आर्ट का ऑप्शन होगा, वहां पे अपना नाम लिखिए, डिजाइन भी ऑलरेडी है, कुछ कुछ आपको टेम्पलेट्स मिलेंगे, वहां से आप अपना रीनेम कर दीजिए और बन जाएगा। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। Raise your hands and that's it. Uh, Piyush. All right, Piyush, ask me a question. Hi Ashish, how are you? Hi. Good to connect. Okay, Definitely. so I have already launched my podcast and it's going fine. But I just wanted to Okay. know, I have also discovered how to put it in different platforms and everything. Everything is figured out. I've tried to help others as well with the technical things, whatever I got the support from the group. But I just wanted to know what is the next step. Like now that we have started and it has gone, and a lot of us has this thought that, oh, okay, can we monetize it or something like that. And whenever we connected with the Spotify, we got to know that this feature and everything is not available in India and all the other platforms as well. Though we are at the exploring stage right now, so I'm not thinking of monetizing or something right away, but at least to have an understanding like how this would go further. This is something which I wanted to know. Very good question, Piyush. Thanks for asking that. So, when I started the whole idea of this entire masterclass, uh, I had two things in my mind. One is a lot of people had trouble into even thinking of doing a podcast. They thought it would require a lot of time, a lot of effort, a lot of gears, equipment, this and that. And I wanted to break it down to the simplest ways anyone with an idea, anyone with something to say can launch a podcast. And that is where I feel that
with over 10,000 students now, we have succeeded that key people are being able to launch their podcast, beginner stage. Now, the other part was always there in my mind that I just don't want people to launch their podcast and okay, that's it. Now, how do I actually make career out of it? How do I actually make money out of it? How do it actually helps me professionally? That was also the second part. And I always wanted to make sure that whenever I do something, as Ashish Bagrecha does something, it is not a half-hearted effort. कि भाई launch कर दिया, सिखा दिया, and people are paid for that, and that's it. No. The second part was always the end game. That I really want people that how I could actually make a living out of it. People should be able to make a living out of it. Now, with the monetization part, uh, my team and I actually finished recording an entire expert class couple of weeks ago, and we are sort of going to launch that to you guys very soon. This is like an invite only initial, so the people who have actually enrolled for how to podcast before will get a premium preview access to that masterclass, and that is where a lot of value I'm bringing on table. So, number one thing to monetize the podcast would, of course, be brand deals. How do you get a brand deal? So, अभी Instagram पे influencers को पैसे देते हैं लोग, आप ये पोस्ट करो, उस हिसाब से आपके पॉडकास्ट पे भी ब्रांड्स वुड पे मनी कि आप आपके पॉडकास्ट पे फॉर एग्जांपल 10,000 लिसनर्स है, इतने लोग सुन रहे हैं, you reach out to brands, how to reach out to those brands, how to convert into brand deals so that they start paying you for featuring their brand कि ये प्रोडक्ट के बारे में मैंने पॉडकास्ट में 2 मिनट बोल दिया, 1 मिनट बोल दिया, आधा मिनट बोल दिया, डिस्क्रिप्शन के अंदर उस ब्रांड के बारे में लिख दिया, या द एंटायर पॉडकास्ट कैन बी फीचर्ड दैट बाय दैट ब्रांड. फॉर एग्जांपल मैं एक फिटनेस ट्रेनर हूँ, तो मेरा पूरा का पूरा पॉडकास्ट किसी फिटनेस ऐप ने स्पॉन्सर भी कर लिया. हाउ टू गेट दोज थिंग्स, how to crack that part, that I've taught. Secondly is आपको अगर खुद का ओरिजिनल Spotify ओरिजिनल या Audible ओरिजिनल अगर आपको बनवाना है या you want deals from them, that is a longer game because you'll need like let's say 1 lakh listeners or more than that so that you can. But how to approach them with that deal for that deal, वो सारी चीज हो गई. And the most important part कि अभी आपको पॉडकास्ट बनाना आता है, बहुत सारे लोगों को नहीं आता है. Correct. आप लोगों के लिए कैसे पॉडकास्टिंग या सर्विस कर सकते हो कि भाई मैं आपको ना, जैसे मैं आपको लोगो डिजाइन करके देता हूँ, आप मेरे को इतने पैसे दीजिए, मैं आपके लिए वेबसाइट बना के दूंगा, आप इतने पैसे. ये इतने सालों से चल रहा है. Correct. अब ये एडिशनल सर्विस हर एक पर्सन जो यहाँ पे ये दे सकता है. मैं ना आपको पॉडकास्ट बना के दूंगा, आप या कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा. दैट्स द इजीएस्ट थिंग ना, Right. दैट यू डोंट हैव टू रियली वरी अबाउट एनीथिंग. Right. कंपनीज को भी अपना पॉडकास्ट बनाना है, इंडिविजुअल ब्रांड्स को भी बनाना है अपना पॉडकास्ट, क्रिएटर्स हो गए इंडिविजुअल्स जिनके पास टाइम नहीं है उनके लिए है. तो दैट्स द मोस्ट इजी थिंग, दैट्स द मोस्ट अमेजिंग थिंग कि ग्राफिक डिजाइन सीख के अंदर लोग ग्राफिक करते हैं, वेबसाइट डिजाइन सीख के लोग वेबसाइट एज अ सर्विस प्रोवाइड करते हैं. तो पॉडकास्टिंग सीख के मैं पॉडकास्टिंग को एज अ सर्विस क्यों नहीं बेचूं? Correct. जरूरी थोड़ी है कि पॉडकास्ट आपको अपने लिए ही बनाना Correct. है ना. आप लोगों के लिए भी तो पॉडकास्ट बना ही सकते हो ना. बिल्कुल. कोई डॉक्टर है, डेंटल डॉक्टर है या एनी डॉक्टर है, वो अपनी हॉस्पिटल चला रहा है सर्विस, तो बोले मैं ना तुम्हारा पॉडकास्ट बनाता हूँ अराउंड मेडिकल हेल्थ इंडस्ट्री, ये वो मैं 10 एपिसोड बनाऊंगा, 20 एपिसोड मैं मेंटेन करूंगा, सब कुछ मैं बोलूंगा, आपकी पूरी ब्रांडिंग हो जाएगी, आप उसके लिए मुझे 25,000 रुपीज दीजिए सिर्फ, या 10,000 रुपीज दीजिए, 5,000 रुपीज दीजिए महीने के. ऐसे अगर आपने 5 क्लाइंट भी, आपने 5,000 रुपए में मेरे 5 एपिसोड ये बंदा बना के दे रहा, पॉडकास्ट बना के दे रहा, क्यों ना हो जाए यार, कोई भी दे देगा. अगर आपने 5 या 7 क्लाइंट किए स्टार्टिंग से एंड देन यू हाइक द प्राइस, मैं अब 10,000 चार्ज करूंगा पर एपिसोड या पर मंथ एज ए सर्विस, दिस नो वन इज डूइंग. प्रोवाइडिंग पॉडकास्टिंग एज अ सर्विस, नो वन इज डूइंग राइट नाउ. बहुत ही लिमिटेड हाई लेवल के जो इन्फ्लुएंसर्स है, क्रिएटर्स है, वो थोड़ा थोड़ा भी स्टार्ट कर रहे हैं. ह्यूज मार्केट, ह्यूज पोटेंशियल एंड अर्ली इनोवेटर्स हम लोग हैं.
सो इट विल हेल्प अ लॉट। तो उस चीज को भी प्रॉपर प्लान्ड वे में कैसे करना है, कैसे प्रपोजल भेजना है, कैसे क्लोज करना चाहिए, दैट इज ऑल्सो इन दैट एक्सपर्ट क्लास। सो इट्स लाइक यू कैन डू अ लॉट ऑफ अराउंड मोनेटाइजेशन अंटिल द टाइम कि अभी जैसे यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं तो यूट्यूब खुद दे पे अस मनी एड्स के लिए, ठीक है ना। एड दिख रही है आपको, कट मिल रहा है। वो चीज पॉडकास्टिंग में होने के लिए टाइम लगेगा, प्रोबेबली 6 मंथ्स टू 1 ईयर, बिकॉज दे आर ट्राइंग। यूएस में स्टार्ट हो गया, 1 साल के बाद में वो ऑटोमेटेड मनी हमको मिलना शुरू हो शुरू हो जाएगा, जाएगा. एड्स वाला। बट टिल दैट टाइम व्हाट एल्स कैन यू डू? Yes. Now that you have learned podcasting, and if you want to apply as a job at a podcasting company, you can do that. जैसे Okay. आपको पता है पॉडकास्ट कैसे बनाना है, now you also know how to write a script. You also know what to do, things like that. You apply in a podcasting company as an intern. You say, I know basics about podcasting. I've learned from Ashish Bagrecha. मेरा खुद का podcast भी, I want to apply as an intern in the podcasting industry because this is the booming industry. You go there, you work there for a month, and you understand all of that. You bam, if you are good, you get a good job in the industry as well. Right. So start as an agency, start as a job, do brand deals, do anything, originals, a lot of things, everything I have learned. I'm gonna show that in that expert class. We're gonna launch that in coming weeks. Okay. So I can't wait for you guys to explore that. But these are the things I've seen said to you. Even if you don't take that expert class, whatever it is, इस तरह से आप you can still make a lot of money. Providing podcasting as a service could be the game changer. So I think that's it. I hope that helps you, Piyush. Yeah, Thank yeah. you. This is really wonderful. Good to know this. Awesome. Thank All you. right. Uh, we're gonna go with Preeti. Good evening, Ashish. How are Good you? evening. I'm good. I'm good. Thank you. What's up? I mean, I'm a huge fan of yours during the lockdown. और उसके बाद जब आपका opportunity मिला, so I just grabbed it to Thank get you. a podcast class from you. The thing is, like, मेरा topic बिल्कुल हटकर है. I mean, Okay. I am a professional astrologer, and I wanted the world to know astrology in a very positive way. Okay. No superstition, no nothing. But now I feel sometimes feels little down because मेरे इतने listeners नहीं हो रहे हैं. Okay. So what can I do? Can you just help me out, or should I change the topic? Okay. My question to you is, आपने अब तक कितने episodes launch किए? Sir, 9. 9 episodes. What's the Yes, sir. duration of those episodes? It's within 10 minutes, Within 10 minutes. What's the frequency of your episodes? Weekly once, weekly twice, weekly ones. weekly once. What's the current and आपके Instagram वगैरह पे do you have a follower base or whatever? Yes, I have a page. How many followers does it have? No, so that's an astrology page. I haven't made the podcast page, but I Astrology already. page Recording I'm in asking about. How progress. many followers do you have on that? I have less than 1K. Yeah, that's okay. How are you currently marketing your podcast? Are you doing anything at all? Sir, I make short reels and Okay. then I promote it and my friends and my relatives also do that thing How are you on making the the short reels? stories. Are you saying people to listen to the podcast at the end of the reel? Yes, sir. How Yes, many sir. reels have you made? Sir, around 6, 7 reels. 6 7 reels. So, Yes. pretty ma'am, the thing with this whole any kind of marketing would be consistency. You will have to make at least I'll say 30 40 reels before two or three of them gets viral, Okay. and you build your Instagram based on that, and then continuously put your podcast link as a story Okay. or a call to action end of the video or in the caption that if you want to understand more about this, go to that podcast. All right. So reels you have to put out daily, 1 or 2 reel every day. Put it for the as a 30-day challenge, and I want everyone over here to follow that challenge. 30 days. Talk about anything, everything, every single day. You put out a reel about anything you feel really that this is the value you want to provide to the world.
And in the caption, you write, okay, I also have a podcast. This week I launched this episode, and if you want to go ahead and link in my bio or Spotify or मेरा podcast सुनिए. Frequency of your episodes, you should increase. Try to do weekly twice, because Okay. astrology is something which I think a lot of people are really interested. And what you said in the beginning is really nice, that you don't want people to believe in the superstitious and this and that. You really want them to understand in a logical and scientific way. Yes, sir. This is practical, this is scientific, this is logical. Yes, sir. If you get to that. So Yes, sir. आपको consistently you need to make sure that you have put out at least 25 episodes, and you have put out like 50, 60, 70 reels. We have worked on it for the next 6 months on that. And then you can say, यार आशीष अभी भी followers नहीं है या listeners नहीं, तो अब मैं क्या करूँ? Okay, Sure. number one. Number two, if I say from the business viewpoint, I'll tell you what, there is a very generalized listenership that would be probably, let's say, कि I have 1 lakh follower, 1 lakh listeners for my comedy podcast, for example, versus if only I have 5,000 listeners, genuine listeners in astrology, which is your niche. अब यहाँ पे अलग अलग लोगों को अलग अलग niche हो सकता है. But if your niche has even limited amount of listeners, but they are dedicated listeners, because of the base of the content you are providing, where content आप अच्छा अच्छा डाल रहे हो every week, और dedicated listeners है कि जो सुन रहा है, भले वो 5,000 लोग हो, those 5,000 people का power is more than that 1 lakh लोगों को power. Because for example, आपने 10 एपिसोड आपने वैल्यू 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 दिया, कंप्लीट वैल्यू दिया, 11th एपिसोड में, एंड अगेन पीयूष एंड एवरीवन इज वंडरिंग हाउ टू मोनेटाइज इट, उसमें बोल दो कि 11th एपिसोड में आपने बोल दिया कि मैं एस्ट्रोलॉजी सर्विस भी देती हूँ, आपने अब तक सुना है, अच्छा लगा अगर आपको, तो एक फ्री कंसल्टेशन मैं आपके लिए कर सकती हूँ, स्पेशली फॉर पॉडकास्ट लिसनर्स. बिकॉज आप मेरे लिसनर हो, मैं इस वीक में एक फ्री कंसल्टेशन दे रही हूँ. एवरी लिसनर, आपको मुझे इस ईमेल पे ईमेल कर, यू Sure. से दैट आउट, और डिस्क्रिप्शन में लिख लो. Okay. आपने अपने बिजनेस के प्रोडक्ट या सर्विस एग्जिस्टिंग वॉट एवर यूर डूइंग, आपने सेल किया थ्रू पॉडकास्ट. अब इंस्टाग्राम रील्स का 30 सेकेंड या 1 मिनट का लोगों का अटेंशन स्पैन होना, 10 बार भी देख लूंगा तब जाके रजिस्टर होगा कि प्रीति एक एस्ट्रोलॉजर है. वर्सेस अगर बंदा 10 मिनट इन्वेस्ट कर रहा है एक एपिसोड सुनने में, हाँ जी. और 10 एपिसोड सुन रहा है, मतलब आपका 100 मिनट तक, 2 घंटे तक आपको उस इंसान ने सुना है, जाना है, पहचाना है. उसके बाद में आपने एक प्रोडक्ट या सर्विस पिच की है, यार मैं ये भी करती हूँ, और उसको जेन्युइनली ट्रस्ट आ जाएगा, यार इसने इतना वैल्यू दिया है, जेन्युइनली अगर अच्छा है, और वो अगर आपको ईमेल कर रहा है, मतलब उसको इंटरेस्ट है, उस पर आप पे भरोसा है. Yes, 10 sir. में से 8 लोग आप इजी क्लोज कर पाओगे, वर्सेस यूजुअली कन्वर्जन रेट 100 में से 5 या 100 में से 10 का होता हो. That's a great way why podcast helps is deeper penetration into your consumer versus a wider penetration. रील्स में या शॉर्ट्स में वाइडर पेनिट्रेशन, बहुत सारे लोगों तक पहुंचोगे, पर अगर बोलोगे ना प्रोडक्ट या सर्विस से मेरा ये, people won't buy into it. Versus a podcast, even if it's a limited listeners ना, don't be disheartened by that. आप ये सोचो कि मेरे ये 100 लोग 200 लोग कंटिन्यूअसली सुन रहे हैं क्या, और फिर वो उनको मैं लाख रुपए भी मांगूंगा ना तो वो देने के लिए रेडी हूँ. दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ लॉन्ग फॉर्म कंटेंट. एक कनेक्ट आप बना रहे हो, राइट. एज अ अगर मैं पॉडकास्टर नहीं होता और मैंने आपको सिखाया होता कि आप पॉडकास्ट सीखिए, तो कोई यहाँ पे नहीं. अगर आपको मेरी आवाज या मेरा पॉडकास्टिंग पसंद नहीं आता, नो वन वुड हैव टेकन दिस कोर्स, राइट. नो वन वुड हैव टेकन दिस मास्टर क्लास. Since you liked it, since you trust me, and I said you should do it, you did it. That's how it will work for your brand also. So put consistent content 6 months tak on Instagram also, of course a podcaster, and don't be disheartened by those numbers. Even if it's 1,000 listeners every month, but if you put out and test करो, 10 एपिसोड के बाद में टेस्ट करो कुछ प्रोडक्ट या सर्विस डाल के, भले खुद का नहीं किसी और का भी, क्या रिजल्ट आता है, टेस्ट दैट आउट. If you want, if you are providing a tutor service, कि मैं ट्यूटर भी हूँ, और 100 लोग 500 लोग 1,000 लोग 10,000 लोग अगर आपको सुन रहे हो, and you put out a product or a service कि I am providing this
at 50% off for my podcast listeners. People will take that opportunity क्योंकि उनको पता है ये exclusively उनके podcast listeners के लिए opportunity है. So I think that is where monetization and consistency and increasing the numbers that answers questions. Thank you so much. Thank you so much. You motivated me a lot. Thank you. Thank God you. bless. Keep doing what you do. Keep doing what you do. Thank you. All right, we're gonna take Saurav. Hi Hi man, what's Ashish, up? I'm good Ashish. How about you? Good, good, good. Tell me, how can I help you? ओके तो मैं भाई पॉडकास्ट मतलब मैं सर पॉडकास्ट करता हूँ एंड एज यू कैन सी आई हैव अ प्रॉपर सेटअप फॉर Yeah, yeah. पॉडकास्ट एंड आई डू हैव थ्री प्रोफेशनल कैमरास प्लस माइक्स सो आई हैव अ कंप्लीट सेटअप एंड आई हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड 2 to 3 पॉडकास्ट वीडियोस बट मैंने अपलोड नहीं करे हैं अभी वो क्योंकि आई एम वेटिंग टू रिकॉर्ड एटलीस्ट 1 or 2 more episodes so that I can maintain my consistency. My first problem is मैं प्रॉपर ऑडियो मतलब प्रॉपर गेस्ट नहीं ढूंढ पा रहा हूँ. Hmm. ठीक है. और दूसरा मेरा था कि हाउ मैं चाह रहा हूँ कि मैं यूट्यूब पे भी सेम पॉडकास्ट पोस्ट करूँ और जो ऑडियो प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक स्पॉटिफाई एप्पल म्यूजिक है उन पे भी अपनी पॉडकास्ट लॉन्च करूँ. तो उसको एक साथ करने का कोई सॉल्यूशन है? Okay, so let's do the first thing. You're not getting proper guests. I want to Yes. understand what is your podcast about. My podcast is basically about fitness and moto vloggers because I am a moto vlogger. Well, I am a bike rider. I am not a moto vlogger. I do have around 1 to 2 million reach on Instagram every month. एंड मैं जो मेरा पॉडकास्ट पार्टनर है ही इज अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर. उसके पास 20 से 21 हजार फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे. तो हमारे नीश में हमें गेस्ट मिल रहे हैं लेकिन नीश नीश से हटके हम चाह रहे हैं कि हम उसको एक्सपेंड भी करें. तो नीश से हटके जो आपको एक्स क्यों करना है? बिकॉज आप फिटनेस पे कितनी ही बात कर लोगे कि कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर आया है आपके पास, आप स्टीरॉइड्स की बात कर लोगे, वर्कआउट रूटीन्स की बात कर लोगे, डाइट प्लान की बात कर लोगे. वो एक ही बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, बार बार फिर कंटेंट तो सेम रहेगा. दैट्स So व्हाई I'll tell इट्स you रियली what हार्ड. I feel that आपको पहले फिटनेस इंडस्ट्री को नेल करना चाहिए. आपको पहले ये गोल लिखना चाहिए अपने मिशन और विजन स्टेटमेंट में दैट हमारा पॉडकास्ट इंडिया का नंबर 1 फिटनेस पॉडकास्ट. फिटनेस पॉडकास्ट. आई सी. That should be your goal. ओके. Once you enter that, then you expand. Not before that. Because your तो मतलब expertise is that. अब आपको ये लिमिटिंग बिलीफ नहीं रखना है कि मैं कैसे और बातें करूं, कैसे क्या करूं. हर इंसान की स्टोरी अलग है. हर इंसान सही बात है. की फिटनेस जर्नी अलग होगी. जरूरी थोड़ी है हम्म. कि आपको टेक्निकल क्वेश्चन ही पूछना है फिटनेस में. हाँ सही आप बात उनकी है. जर्नी सही पूछो बोला. कि आपकी जर्नी हम्म. कैसे शुरू हुई. आपने फर्स्ट वर्कआउट कैसे किया. आपका ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी क्या था. आपके स्ट्रगल्स क्या थे. आपने कैसे वो ओवरकम किया. आपको लोगों ने जब सही आप बात है. मोटे थे फॉर एग्जाम्पल तो आपको कैसे फील हुआ. जब लीन हुए हम्म. तो कितना अटेंशन मिला. क्या आपके वर्क लाइफ में कुछ डिफरेंस हुआ. क्या आपके रिलेशनशिप में डिफरेंस हुआ. क्या लोगों ने आपके जैसे के बर्ताव था उससे डिफरेंस हुआ. बिकॉज फर्क पड़ता है ना. इंडिया में स्टीरियोटाइप है. हम्म. मोटो को मोटे को हाँ हाँ. चिढ़ाते हैं, पतले हो तो उनको अटेंशन देते हैं. ऑल ऑफ दिस थिंग द सही बात है. सोशल इम्पैक्ट ऑफ इट. टॉक अबाउट दैट. एंड देन एक्चुअली राइट. जो लोग नॉन जो फिटनेस के लिए एस्पायर कर रहे हैं कि मेरे को फिट होना है बट नहीं हो पा रहे, वो पेन पॉइंट है. इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि भाई फिट सबको होना है बट इजी तरह से. हम्म. एक्सरसाइज बिना किए शॉर्टकट मेरे से. को कुछ बता दो. तो व्हाट कुड बी द इजी वर्कआउट थिंग. आप सेट ऑफ 20 क्वेश्चंस भी पूछ लोगे ना, हाँ. दैट इज इट. पर्सनल जर्नी, दैट इज वेयर पीपल विल बी मोर इंटरेस्टेड इनटू. यार इसकी जर्नी सुनी, मैं इंस्पायर हुआ, मैं कल से वर्कआउट करूंगा या आधा घंटा वॉक करूंगा या 15 मिनट ध्यान. Because this is the biggest crisis we are in right now. Health, यस यू which आर is राइट. तो physical health and mental and emotional health. So when you talk about सही बात है. fitness, I also wanted to expand into कि चलो physical fitness के अलावा मैं mental fitness की बात कैसे करूं. Depression, anxiety, which is related to your lifestyle basically.
हम्म अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है, इफ यू आर वर्किंग आउट, इफ यू आर ईटिंग राइट, तो आपका मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहे। और अगर आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों अच्छा बैलेंस है, तो यू हैव हम्म। बेटर चांसेस ऑफ हैविंग अ बेटर इमोशनल। तो तो लाइफ अगर के मैं सभी फिटनेस, एरियाज ही इम्पैक्ट होते हैं। सही So बात है, अगर मैं I'll फिटनेस की come to बात that. I'll करूँ। come to that. Let me just ओके, answer those questions. नो I'll give इशू, नो you इशू। a chance to re-question me. But what I'm trying to say is, your tagline should be, "How do I become number one fitness podcast of India?" That's the whole goal of it. अंडरस्टूड। And then you reach out to people in this stage. Questions अलग अलग पूछ, give out a different perspective. Second, technique, trick दे रहा हो अभी। क्वेश्चन अब दिमाग में निकल भी गया, अब नहीं पूछना। गो टू चैट जीपीटी, उस बंदे के बारे में लिखो। ये बंदा है आशीष बागरेचा, इज अ पोएट, दिस इज बेस्ड आउट ऑफ सूरत, ही हैज डन दिस, इसकी जर्नी ये है। बेसिक एक इंट्रो डाल दो। आई एम डूइंग अ पॉडकास्ट विद हिम, गिव मी 20 डिफरेंट क्वेश्चंस टू आस्क, पर्सनल क्वेश्चंस, फाइनेंस क्वेश्चंस, बिजनेस क्वेश्चंस। चैट जीपीटी विल गिव यू 20 क्वेश्चंस टू आस्क डायरेक्टली, दैट्स इट, सिंपल। क्वेश्चंस बनाना तो काफी इजी पार्ट है, तो आपने वो तो नहीं, कर आपका लेंगे, कोई क्वेश्चन इशू। ये था कि मैं क्या ही पूछूं बार बार। हाँ मतलब ये आपने एक बताया ना, तो सडनली क्लिक किया ये बात, हाँ एक्सपीरियंस तो के ऊपर भी बात क्लिक कर अभी हुआ सकते ना हैं। सर, तो इजी हाँ था। अब आप इजी को एग्जीक्यूट करेंगे ना, तब समझ में आएगा। ठीक है, नहीं अब तो Execute that, समझ रहे number हैं, one. समझ आ Be रहा है। that, and then you build a business around that. Build a business एग्जैक्टली। how? You have a fitness podcast, monthly 1 lakh listeners, for example. You reach हम्म out to companies or brands who become हम्म sponsor for the whole podcast, या individual podcast. You know, जैसे प्रोटीन शेक्स बेचती है कंपनीज या प्रोडक्ट बेचो या genuine. या और there are a lot of apps also, cult fit हो गए, या कोई जिम हो गया मसल जिसका ब्लेज या फिर नेशन वाइड है। A lot of smaller brands also जो अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं एक्चुअली ऑर्गेनिक। या वी आर डूइंग दैट राइट नाउ, Yeah, so you can अबाउट फॉर A, दैट। promote your own products also. अगर if you हम्म have an e-commerce channel or whatever, हम्म B, you can reach out to these people. C, किसी फिटनेस ट्रेनर को आपने प्रमोट कर लिया किसी के अंदर, भाई मैं तेरे को फीचर करूंगा, तेरे को मेरे पॉडकास्ट पे आने का एज अ गेस्ट हम्म। मैं तेरे को चार्ज करूंगा 10,000 रुपए, 20,000। बस तो पीपल वांट एक्सपोजर, यस। आप उनको एक्सपोजर दे रहे हो आपके पॉडकास्ट पे। व्हाट डू यू थिंक ऑल दिस टॉप पॉडकास्टर्स डू? उनके वहां गेस्ट आते हैं ना सर, वो गेस्ट से पैसे लेते हैं आने। हाँ वो तो आई ऐसा काइंड ऑफ बिजनेस नो। मॉडल कि भाई मेरे पॉडकास्ट पे आने के मैं आपसे पैसे लूंगा, क्योंकि आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस या अपने ब्रांड को प्रमोट करने वाले हो ना। हम्म मेरा एग्जैक्टली। फेमस है भाई, मेरे के लिए तो गेस्ट सामने से आपको डीएम करेंगे, भाई मेरे को आना है, तो बोलने का सर मेरा तो फुल है, बट अगर स्लॉट इन करना है कुछ, तो मैं कुछ बिजनेस डील स्ट्राइक आउट करवाता हूँ, मेरे मैनेजर से बात कर रहा हूँ, मैनेजर को बोलते हम्म रहेगा तू बात कर, वो फोड़ेगा उसको 25,000 रुपए में, सही पचास बात। हजार में, 1 लाख रुपए में। हम्म That becomes your whole तो business model. Become number one on that. That's it. ओके अंडरस्टूड। Go ahead. एक और क्वेश्चन है। अ, अगर एक मैं मोटा मोटा नंबर पूछूं आपसे कि इफ आई वांट टू लॉन्च माय फिटनेस कोर्स, वर्कआउट कोर्स, Hmm. तो वो किस पॉइंट ऑफ टाइम पे लॉन्च करना चाहिए? आइदर ऑडियंस बिल्ड होने के बाद या फिर स्टार्टिंग से शुरू करना चाहिए? You should have an audience. You should have a good audience. As you said, your friend has close to 20,000 followers. 20 If you're putting या out really good content every time, and let's say it reaches to 50,000 followers or 100,000 followers, that is a good time to launch your course. But also make sure you have a timeline attached to it. कि यार मैं 3 महीने में 50,000 तक पहुंचूंगा, जो भी जल्दी होगा मैं करूंगा, या तो 3 महीने में करना पड़ेगा या तो 50,000 पे करो। क्योंकि होगा क्या कि इंडस्ट्री फटाफट शिफ्ट होगी। आज जो सही कोर्स बात है, बिकेगा वो शायद 1 साल बाद नहीं बिकेगी। दोनों जरूरी है, सही बात मार्केट है। भी जरूरी है और टाइमिंग भी जरूरी है, आपकी अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। अदरवाइज आप डिसहार्टेंड हो हम्म जाओगे, क्या मेरा मेरे पास कोर्स तो इतना अच्छा था, बिका नहीं। तो those things, put it out, हम्म 3 months, 50,000 followers, whichever is earlier, I'll do it. अंडरस्टूड। Sounds good? थैंक्स थैंक्स। Okay, awesome. Thank you, sir. All the best. Yes, Poonam. Okay. What's happening? Poonam, I'm trying to unmute you, but nahi ho pa raha. Can't hear you.
नहीं हो रहा नहीं है। हो रहा ओके, है। ओके। टू संध्या। संध्या जी कुछ पूछना है आपको? जी हाँ जी। नमस्ते सर, मैं संध्या दफ्तरी नमस्ते। नासिक से। सर डन। हेलो। हेलो। Right, give me a minute, Poonam. I'm gonna finish speaking with Sandhya ma'am, and then I'll come back to you. Yeah. Thank you. Yeah. जी जी, मैंने आपका बेहतर कोशिश जिंदगी की कोशिश वो सुना था, और उसके बाद मैंने आपका कोर्स किया है। तो मेरी एक ऑनलाइन मैट्रिमोनी है। हेलो। हाँ जी, हाँ सर, आप सुन रहे हो? सुन रहा हूँ, बोलिए। जी जी, मेरी एक ऑनलाइन मैट्रिमोनी है। उसके लिए मैंने अरेंज मैरिज विद दफ्तरीज विवाह करके एक पॉडकास्ट स्टार्ट किया है ओके। आपके कोर्स के बाद। उसमें मैंने 9 एपिसोड अभी लॉन्च कर दिए हैं। मुझे मतलब लिसनर भी अच्छे मिल रहे, क्योंकि मेरे जो मेंबर्स है उनको मैं भेजती हूँ तो वो सुनते हैं। मुझे प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि मुझे ऐसे लगता है कि मेरा वॉइस उतना अच्छा नहीं हो रहा है। तो ओके। उसके लिए मैं क्या करूँ, उसकी क्वालिटी सुधारने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? ओके। आपका वॉइस आपको अच्छा नहीं लग रहा, वो आपको किसने बोला? मतलब आपके किसी लिसनर ने नहीं बोला या आपने खुद ने डिसाइड किया? नहीं नहीं, एक्चुअली मुझे जो फीडबैक आया है वो ऐसे ही आया है कि जब हम आपको सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। जो हमारे सवाल होते हैं वो आप अच्छे से जवाब देते हो। तो जब हम आपका एक एपिसोड सुनते हो तो हम बार बार सुनते ही है। तो मेरे कुछ यहाँ पे रेडियो पे कुछ प्रोग्राम्स भी हुए थे, वो भी मैंने उनको भेजे थे, तो उनका भी फीडबैक मुझे बहुत अच्छा आया था। लेकिन जब मैं खुद अपना वॉइस सुनती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि ये और अच्छा होना चाहिए, इसकी नहीं होना क्वालिटी। चाहिए। आप जैसे कर रहे हो, आपका फीडबैक खुद आप अपने डिसाइड कैसे करेंगे कि मैं कितना अच्छा हूँ या नहीं? वो तो दुनिया डिसाइड करेगी ना क्या अच्छा है या बुरा। मेरे दिमाग में मैं सोचूं मेरा आवाज सबसे अच्छा है और दुनिया को पसंद ही नहीं आएगा, तो मेरा आवाज अच्छा है क्या? नहीं। आपके दिमाग में अगर आपने सोचा मेरा दिमाग आवाज बहुत खराब है पर दुनिया को एक्चुअली में पसंद आ रहा है, तो किसने डिसाइड किया कि आपका आवाज खराब है? लेकिन फिर भी हम कुछ कर सकते आई हैं आई क्या? टेल यू दैट, मैं आपको वो चीज बताता हूँ, बट थिंग इज कि आपको सबसे पहले अपने आप को कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि यार जो है वो अच्छा है। ओके। और उसके बाद अभी क्या बेटर कर सकते हो वो आई गिव यू द आंसर। बट अगर आप ऐसा कहोगे कि मेरा आवाज अच्छा नहीं है ना, तो आप जिंदगी में कितना भी कुछ कर लोगे हमेशा आपको कमी लगेगी। यार मेरा अच्छा नहीं, अभी भी अच्छा नहीं, अभी भी अच्छा नहीं। हाँ, वैसे सिर्फ मेरे एक हस्बैंड ने कहा था कि तुम जब बात करती हो तो वो बहुत फास्ट करती हो, वो थोड़ा स्लो डाउन कर दो। और हस्बैंड और दूसरा वाइफ का फीडबैक जिंदगी में सुनने का है। अगर सक्सेसफुल होना है तो हस्बैंड वाइफ का फीडबैक मत सुनो, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का फीडबैक मत सुनो। दूसरा सबका सुन लेना पर हस्बैंड वाइफ का मत सुनो। ओके, लेकिन इम्प्रूवमेंट तो करनी चाहिए ना इंप्रूवमेंट के लिए उन्होंने। बता दो, अभी आप रिकॉर्डिंग कैसे करते हो मैम? मैं सीधा वो पॉडकास्टर जो होता है ना उससे करती हूँ। द फोन से माइक करते हो राइट? लेने का मैं सोच रही हूँ अभी, तो तो वो भी आप मुझे एक, पूछना था कि कौन सा लूँ हाँ, अगर मुझे तो इन्वेस्टमेंट आप करना है अच्छा तो। सा एक माइक लेंगे तो उसमें आपका क्वालिटी अच्छे से आएगा और बेटर आ जाएगा जैसा आपको चाहिए। मेरा जो ओके। कोर्स है उसमें साथ में वर्कशीट्स आपने देखी है, वर्कशीट्स है जी टू जी, डू उसमें लिस्ट। है, उसमें हाँ, है, उसमें है। उसमें हाँ है, तो तीन टाइप्स में, तीन बजट में दिखा हुआ है। एक हाँ 4-5,000 के अंडर का, एक 10,000 के आसपास का, एक 20,000 का। उसमें जो मिड लेवल का एक है, एंटी हाँ यूएसबी करके, रोड एंटी यूएसबी 10,000 के आसपास का, दैट इज रिकमेंडेड। आप अगर वो लेंगे तो आपका आवाज काफी अच्छा आ सकता है। बट आपको टेस्ट करना है, इतना स्पेंड नहीं करना, 4,000 5,000 में है तो उसकी भी लिंक्स उसमें है, आप वो हाँ टेस्ट जी करिए जी। और आप उससे चेक करिए। तो फोन के कंपैरिजन में उसमें आवाज आपका डेफिनेटली बहुत बेटर हो जाएगा। ओके। बट आपका आवाज ऑलरेडी अच्छा है। ओ। हस्बैंड को नहीं सुने, हस्बैंड को सुनाए। थैंक यू मैम। थैंक यू। ऑलराइट, गोना टेक पूनम नाउ। सर आवाज आ रही है आपको? यस आई कैन हियर यू नाउ, चलो। सर हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर थैंक यू चांस देने के लिए। मैं थैंक यू वेरी आधे मच। तो वैसे भी सवालों के जवाब तो वैसे भी दे दिए जा चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ ही बचा है पूछने के लिए। पूछिए पूछिए। सर मुझे एक बात बहुत डेस्परेटली पूछनी थी कि कभी आपकी लाइफ में ऐसा फेज आया हो
कि जब आपने बिल्कुल ही ऐसा सोच लिया हो कि भाई अब मुझसे ही पॉडकास्टिंग नहीं होगा, मैंने शुरू तो कर दिया है, हम्म, मतलब अब वो कंटिन्यूटी नहीं रही मेरी लाइफ में, हम्म, कुछ ऐसे लाइफ के फेजेस है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हैं कि अब मैं हम्म, कंटिन्यूटी नहीं कर पा रहा हूँ, तो किस चीज ने आपको पुश किया या मोटिवेट किया? क्योंकि हम्म, मेरी लाइफ में ये जो समर वेकेशन, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ये हम्म, सब मेरी लाइफ में बहुत स्टॉप आ गया है एक, जो मैं अपने आप को पुश ही नहीं कर पा रही हूँ। हम्म, मेरा पहला प्यार तो किताबें और ये पॉडकास्टिंग और ये सभी है, हम्म, पर मैं सर कंटेंट लिख चुकी हूँ, पर उसको हम्म, रिकॉर्ड करने के लिए अपने आप को पुश नहीं कर पा रही। हम्म, मैं एज अ हाउस वाइफ, मेरे को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत रोक रही है, हम्म, पर मैं अपने आप को सिर्फ पुश करना चाहती हूँ, और मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि ऐसा क्या हो कि जो मैं अपने आप को पुश कर पाऊँ। सर हो ही नहीं पा रहा, पता नहीं क्यों। ओके, तो ऐसा ऐसा क्या करूं जो सर मैं अपने आप को बहुत अच्छे से पुश कर पाऊं, वैसे जैसे शुरू किया था जोश में एकदम, बहुत हम्म, जोश से शुरू किया था, वो जोश ठंडा हो गया है सर, पता नहीं हम्म, क्यों। हम्म, हम्म, और टेक्निकलिटी, सर जो टेक्निकलिटी आपने जो सिखाई थी हमें, जो एक अच्छे से पॉडकास्ट मतलब लॉन्च करने की, जो माइक्स वगैरह हो ये सब, क्या वो शुरुआत में जरूरी है कि अच्छे से लॉन्च हो जाने के बाद भी कर सकते हैं कर सकते हैं, माइक वगैरह? लॉन्च करने के बाद भी कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जी। इमेजिन करिए आपके ना 1 लाख इंस्टाग्राम फॉलोअर्स है। कितने? ओके। 1 लाख। 1 लाख इंस्टाग्राम फॉलोअर्स है। हम्म। आप रोज अगर फोटो डालते हो तो आपको इजीली 10,000 लाइक्स मिलते हैं। जी। लोग कमेंट्स मारते हैं, 200 300 400 कमेंट डालते हैं। अच्छा लगेगा? जी। बहुत। बहुत अच्छा लगेगा। एक भी दिन जी। ऐसा रहेगा कि आज कुछ नहीं डाला, जोश जाएगा? नहीं सर। मतलब प्रॉब्लम आपको क्या है पता है मैम? आपको है सक्सेस की भूख। आपको जी। लग रहा है जब तक सक्सेसफुल नहीं होगा तब तक मैं नहीं करूंगी, पर आप करोगे नहीं तो सक्सेसफुल होंगे कैसे? सक्सेसफुल कहाँ से होंगे नेचुरली? जी तो जी जी ह्यूमन सर। प्रोसेस हमारा माइंड का ये हो गया कि यार मेरे को जब तक वैसा नहीं मिलेगा ना तब तक मैं वो नहीं करूंगा। वो थोड़ी वो नहीं चलता है। करूंगी नेचुरली सर। सर यही तो है ना मतलब हमारा। कहने का नंबर जो आपने बात कही ना कहीं ये सवाल है कि आपने कहा मेरा पहला प्यार किताबें और पॉडकास्ट है। तो अब मैं आपको पूछना चाहता हूँ, जिससे आप प्यार करते हो, अगर उसमें नंबर्स मिले या ना मिले फिर भी आप प्यार करना छोड़ते हो क्या? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं सर, तो प्यार या तो तो प्यार आपका ही प्यार रहेगा। झूठा है, या तो फिर आप पूछ लीजिए अपने आप को क्या है। नहीं नहीं सर, प्यार तो सच्चा ही है, बस प्यार नहीं को है समय मैम, नहीं दे प्यार पा रही प्यार हूँ। सच्चा होता ना तो कोई नहीं सुनता तो भी मैं करता। नहीं मेरी नहीं सर, पर्सनल प्यार। एग्जांपल अगर आपने पूछा है तो मैं यही बात बताता हूँ। मेरे को अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग सुन रहे कितने लोग नहीं सुन रहे। मुझे पॉडकास्टिंग इसलिए पसंद है क्योंकि मैं जब कहता हूँ बातें दिल हल्का होता है मेरा। फिर लोगों को हेल्प होती है वो अलग दूसरी चीज है। मुझे अच्छा लगता है बात करना। मैं अपने थॉट प्रोसेस से और सेल्फ अवेयर होता हूँ। व्हेन आई स्पीक माय थॉट्स आई रियलाइज ओके, दिस इज गोइंग इन माय हेड, दिस इज गोइंग इन माय हेड, आई एम थिंकिंग लाइक दिस, these are things I'm improving. These are things very important for me. So if you take this as a learning process, then it becomes easy. इजी। Versus like a process कि मैं ये करूंगी तो सक्सेसफुल होंगे, इतने लोग मिलेंगे। That should not be ideally दिमाग में कि ये पर्सपेक्टिव से स्टार्ट मत करो। टेक इट एज ए लर्निंग प्रोसेस। ये करती हो तो लर्निंग प्रोसेस। सीखती हो। 10 लोग सुनेंगे चलेगा, तो वो 10 लोगों का फीडबैक क्या है वो इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट है। 2 लोग सुनेंगे तो सुनेगा, मैं अपने आप को कितनी अच्छी तरह से जान सकती हूँ, दैट इज इम्पोर्टेंट। आर यू कंसिस्टेंट विथ इट और नॉट? बिकॉज आई टेल यू व्हाट मैम, समर वेकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, किड्स, हस्बैंड, ये सब ना हमारे माइंड में एक्सक्यूजेस बना दी क्योंकि बना ये दिए एक्सपीरियंस एग्जैक्टली। तो नहीं कर पा रही है। वर्सेस द पॉइंट इज यू रियली डोंट लव डूइंग इट। ओके। नो 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 सर, आई You लव इट। love doing it for the success it gives. If it won't give you हाँ। the success, you won't love doing it. ओके। नहीं सर, ये तो खैर नहीं है, पर आपका पॉइंट वैलिड है सर। कहीं ना कहीं मैंने एक्चुअली में गिव अप कर दिया था, पर मैं गिव अप करना नहीं चाहती थी, कहीं ना कहीं मैंने एक कल बहाना उठ बना के लिया अगर कि। आपने पॉडकास्ट डाला और 1 लाख लोगों ने सुन लिया तो आप रोज डालते मैम। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। प्यार सच्चा अच्छा होता है ना अच्छा। तो कुछ हो या ना हो आप करते ही हो प्यार। करते ही बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है सर। तो प्यार कच्चा है, उस प्यार को मजबूत करना है। यार मैं अपने लिए कर रही हूँ, ये मेरा एग्जैक्टली सेल्फ सर, लव मैंने है। शुरू, मैं सर आधा शुरू घंटा खुद के अपने लिए लिए ही किया सेल्फ था। शुरू शुरू एग्जैक्टली किया exactly. है।
तो उस रिश्ते को निभाना भी तो पड़ेगा ना। जब शादी कर एग्जैक्टली ली, सर। अब नहीं, मजा नहीं आ रहा तो छोड़ देते, डिवोर्स दे देते, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं रिश्ते को नहीं जैसे सर आप निभा रहे हो ये एज अ हाउस वाइफ, एज अ मदर, इसको भी ये कि ये मेरे साथ का एग्जैक्टली exactly. रिश्ता है, दिस इज सर माय रिश्ते को भी तो, रिलेशनशिप विद माई सेल्फ। वही तो, उसको ग्रो करने के लिए भी तो एक तिनका तिनका देना पड़ता है ना हर रोज। तो ये बस तो मैं ये कैसे आज भूल का गई मौका सर। आपका तिनका है, करिए। पर सर इसको कंटिन्यूटी देने के लिए, जैसे हम जो सोशल मीडिया पे डालते हैं उसके लिए मतलब किसी को भी मतलब आप जैसे हाउ टू पॉडकास्ट को टैग कर सकते हैं हम लोग डेली कर बेसिस सकते पे। कर सकते नहीं, हैंडल तो किसी को भी टैग लाइन मतलब कर कंसिस्टेंटली सकते। हम लोग को डालना इजी है ना। हाँ हाँ, अगर कर डेली सकते। बेसिस पे डालें तो हमारी ग्रो बढ़ सकती है ना यू सोशल शुड यू मीडिया पे। शुड यू शुड डू दैट। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने Thank मेरा you माइंड very इतना क्लियर कर much. दिया। Thank you very थैंक यू सो much. मच सर। All right, हैव अ ग्रेट डे सर। I'm gonna take one last question for today, and फिर next time के लिए हम wait करेंगे. Yeah, Neetu. Hi. Hello, how are you? I'm good. I'm good. Thank you for asking. How are you? I'm also good. Sir, I have a podcast, Nazariya, the Bright Side. After taking your course only, I started it. So I just wanted to know कि voice modulation पे कैसे work कर सकते हैं? Okay. वो मेरा कभी प्रॉपर नहीं आता है, मेरे को उसके लिए फीडबैक मिला है कि कभी बहुत फास्ट हो जाता है, कभी ब्रेक नहीं लेती है, कभी मतलब बहुत साउंड नहीं करता है, मतलब लो साउंड करता है, कभी पूरा एक ही टोन में होता है। तो वो उसको मतलब पिच हाई, कितने पिच एपिसोड लो, लॉन्च लो किए मैम पिच। आपने? जी, मेरे आपने उसमें 6-7 एपिसोड्स हैं। तो 6-7 एपिसोड में वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं आएगा, नंबर वन थिंग। यू हैव टू एटलीस्ट रिलीज 20-25 एपिसोड्स, आपको समझ में आएगा कि मेरा एक्चुअल होल्ड क्या है। यू हैव टू डू ओके, तो यहाँ पे दैट। मेरा एक पॉइंट है कि एक्चुअली ना मैं आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज के लिए वेट करती हूँ, मैं ब्रेनस्टॉर्म बहुत करती हूँ, मेरा सुबह से रात तक माइंड चलता है उसके पीछे। बट मैं वेट करती हूँ कि मेरे को आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज आए, फिर मैं रिलीज करूँ अपना पॉडकास्ट। अगर मैं रोज कर रही हूँ कंसिस्टेंट बेसिस पर और मैं कुछ भी पोस्ट कर रही हूँ या कुछ भी मतलब ऐसे मैं ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करती हूँ, तो वो एक इमेज फॉर्म हो जाती है कि नहीं मतलब ये तो इस पर्टिकुलर टाइप का कंटेंट रिलीज कर रही है, मतलब इसके माइंड में यही होगा। और फिर वो मतलब नहीं चलता है इतना, तो मैं वेट करती हूँ कि मेरे को बहुत ज्यादा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आए, फिर मैं उसके बाद उसको पोस्ट करती हूँ। दो तो चीजें, क्या ये सही ओके, है? देयर आर टू वेज टू डू इट। वन, एवरी टाइम यू थिंक समथिंग, आप अपने फोन में ऑडियो रिकॉर्डर ऑन करके रिकॉर्ड करेंगे। पूरे दिन में कुछ भी आइडिया है, रबिश रबिश आइडिया आएगा, अच्छे से अच्छा आइडिया, आउट ऑफ बॉक्स आएंगे। या तो आप लिखेंगे आपके नोट्स में फटाफट फटाफट, या आप वॉइस नोट अपना अपना खुद का व्हाट्सएप ग्रुप बना के उसके अंदर वॉइस नोट में डाल दें। पूरे दिन में जो भी थॉट आया हो, रात को आप बैठेंगे उन आइडियाज को देखेंगे, यार ये अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा, उसमें से टॉप 3 शॉर्टलिस्ट करके, 2 शॉर्टलिस्ट करके उस पर आप एपिसोड रिकॉर्ड करके आप डाल। अब ये ओके। चीज आप करेंगे ओवर द नेक्स्ट 7 और 10 डेज, 10 डेज तक ओके। यू विल डू इट। ओके। और फिर आपका ब्रेन रिवायरिंग होता रहेगा कि ओके, अब एवरी टाइम द 10th डे, सुबह से शाम तक जो चीज आप रिकॉर्ड करोगे ना, वो ब्रेन और बेटर आइडियाज, और बेटर आइडिया, बिकॉज उसको अभी एक प्रोसेस समझ में आ गया कि एंड ऑफ द डे मेरे टॉप 3 आइडियाज सिलेक्ट होने वाले, ब्रेन विल कीप गिविंग बेटर या आइडिया, राइट। फॉलो दैट वे। इफ यू वोंट डू, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि बेटर क्या करना है। राइट। करेंगे नहीं तो बेटर क्या करना है वो कैसे पता चलेगा? एग्जैक्टली। अब सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। राइट। Okay, so this is a process which I have followed in a lot of times. पूरे दिन में कुछ भी आइडिया लिखने में, स्पेशली राइटिंग में, आई यूज्ड टू डू दिस अ लॉट। जैसे पोएट्री लिखने में होता है या कुछ बुक लिखने के लिए में होता है, तो आइडिया आया, 3 लाइनें लिख के डाल दिया मेरे खुद के ग्रुप में। पूरे दिन में जो भी आया, ये वर्ड या आया, ये वर्ड अच्छा लगा, ये लाइन अच्छी लगी, ये आइडिया अच्छा लगा, रात को बैठ के टॉप 3 सिलेक्ट कर देना। ओके। पैटर्न भी आपको समझ में आएगी। 5 दिन तक अगर आपको एक आइडिया कंसिस्टेंटली आ रहा है, उसका मतलब आपका दिमाग कंसिस्टेंटली सबकॉन्शियसली उसके बारे में सोच रहा है। और यहाँ पे एक चीज ये भी होती है, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दिस आइडिया। बट यहाँ पे एक चीज ऐसी भी होती है कि आई एम सेल्फ हेल्प राइटर ओनली, तो जितने भी राइटर्स को फॉलो कर रही हूँ तो वो ऑलरेडी कोई राइटर प्रेजेंट कर चुका होता है। तो मुझे लगता है कि नहीं, मुझे अब और लेवल अप करना होगा और सबको मुझे और अनफॉलो आउट कर ऑफ द दीजिए बॉक्स प्लीज। सोचना होगा। अनफॉलो अनफॉलो। अनफॉलो माय गॉड। आपकी इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं उन सबको अनफॉलो, आपके कॉन्टेम्पोररीज को ऑलवेज अनफॉलो। ऐसी कोई फिर भी चीज तो आज तक है नहीं जो लिखी नहीं गई, कहीं नहीं गई, सुनाई नहीं गई। राइटिंग में हम हमें कहा जाता है हमेशा,
या सिनेमा में भी हमेशा ये चीज कहा जाता है, या म्यूजिक में भी हमेशा है। ऐसा कोई भी सुर नहीं है, ऐसा कोई भी गीत नहीं है, ऐसी कोई भी बात नहीं है, ऐसी कोई भी फिलोसॉफी नहीं है, ऐसी कोई भी मूवी नहीं है या स्टोरी नहीं है जो पहले कहीं किसी ने कही नहीं है। और फिर भी आज लोग कहते हैं, कोशिश करते हैं इस जमाने में नए नजरिए से कहने। फिर भी स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करते हैं और कुछ नया लाते हैं। नया हमारा पर्सपेक्टिव आता है, हमारा एक्सपीरियंस आता है। एग्जैक्टली। इस मॉडर्न इस समय इस वक्त में उस चीज को कैसे अप्लाई करना वो आता ओके, या राइट। है। वो इम्पोस्टर सिंड्रोम यू विल ऑलवेज हैव, that I am trying to copy someone else, I'm trying to become someone else, this and that. You do not fall into that trap. या You do not, because that's always going to demotivate you. Unfollow all of them. Content consume ही मत करो। You या you आई कैन अंडरस्टैंड। keep putting all your stuff out, तो आपको भी नहीं लगेगा कि मैंने इंस्पायर होके किया है या कॉपी किया है या लोगों ने या सुना है कि नहीं। तो ये हमेशा रहेगा, एनी क्रिएटिव फील्ड विल फील लाइक दैट। शुड एग्जैक्टली नॉट यही प्रॉब्लम होती दैट है शुड कि मैं नॉट ना स्टॉप यू रीडर, फ्रॉम डूइंग मतलब इट। रीड, तो आई ये एम मोर चीज ऑफ अ का जो रीडर मेन देन ट्रिगर है, राइटर। all those people, unfollow, stop consuming that या content, stop consuming that ओके, content, okay? थैंक यू सो मच। All the best. All right. बहुत बहुत शुक्रिया. Almost it's 8 o'clock, 7 to 8 का सेशन था. Thank you so much all of you guys who have been here. I really hope कि आज का सेशन आपको हेल्पफुल रहा होगा. And all the best. प्लीज आप अपना पॉडकास्ट लॉन्च करते रहिए. बी पेशेंट विद इट. लिसनर्स नहीं आ रहे, या ये नहीं हो रहा है, या डर लग रहा है, फाइट ऑल दोस फियर्स. पुट आउट कंटेंट कंसिस्टेंटली. 20 25 30 एपिसोड्स एक बार डालिए. एंड हमारा जो एक्सपर्ट मॉड्यूल जो लॉन्च होने वाला है और मोनेटाइजेशन, मार्केटिंग एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, दैट्स गोना रोल आउट इन द टाइम कमिंग टाइम्स. तो ग्रुप में या ईमेल में आपको आएगा. सो डू चेक दैट आउट. इट्स गोना बी सुपर हेल्पफुल टू यू गाइस. और आपके फ्रेंड्स में वगैरह भी अगर कोई है जिन्हें पॉडकास्टिंग पसंद है, उन्हें मोटिवेट करिए, पकड़ के बिठाए, पॉडकास्टिंग करे, आप सिखा दे उन्हें जो भी है. जरूरी नहीं है कोर्स लेना. आई जस्ट वांट कि हर इंसान के पास आवाज है, तो उन्हें आवाज करने का प्लेटफॉर्म अगर मिला है तो दे शुड डू इट, दे शुड से इट. भले आपके फ्रेंड्स लोग सुने सिर्फ, या आपकी फैमिली सुन रही है, आपके 100 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप सुन रहे हैं, बट आपकी आवाज, आपकी बातें लोगों तक पहुंचनी चाहिए. दैट आई बिलीव. एंड आई हैव सो मच लव फॉर ऑल ऑफ यू गाइस. तो आप अपना ध्यान रखिए. एंड नेक्स्ट सेशन जब भी होगा तो ग्रुप में मेरी टीम मैसेज करेगी और मैं आपसे बात करूँगा. ऑलराइट थैंक guys, यू have a सर। good day. Good evening. Good Thank night. you, Good night. Ashish. It's been a बाय wonderful सर। session. Thank